Hello everyone, my name is Sumit Mahadik. I'm your biology expert. Now tell me one thing. Today we are going to discuss a kingdom. What kingdom? We are going to talk about the kingdom Monera. So the kingdom Monera is exclusively, it's what? Exclusively is for only bacteria. See, यहाँ पे क्या होंगे? We are going to study only bacteria. So the kingdom Monera, when you talk about the kingdom Monera, we are only focusing on the bacteria. भाई इन बैक्टीरिया को छोटा मत समझना, बहुत शरारती है एंड दे आर प्रेजेंट everywhere, right? Mostly they are present everywhere. They are ubiquitin. That means they are present everywhere. Now in this bacteria also we'll study that. क्या हम स्टडी करेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे ट्रू बैक्टीरिया भी होते हैं. So again I'm telling you, I am going to deal with in today's session is only kingdom Monera, जो किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड है. जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आपको पता होता है कि क्या रहेगा, उसके ऊपर एक कैप्सूल रहेगा. ऐसा नो, एक क्या होगा? कैप्सूल होगा. देन दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर कॉल्ड दी पिलाई. क्या बोलेंगे उसको? पिलाई बोलेंगे. एक न्यूक्लियस रहेगा. ऐसा नो, तो ये सब स्टडी करेंगे हम अच्छे से, क्या है क्या नहीं. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो हम आज बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में. So here is the kingdom Monera. What are the characteristics? The first characteristics. Can you see the first characteristics? What is the first characteristics? क्या है लिखा है? The prokaryotics includes all the bacteria. Exclusively किसके लिए? Bacteria के लिए, right? Then there are ubiquitins. What is ubiquitous? Present everywhere. Present everywhere. Present everywhere. कहाँ रहेंगे? They will be present everywhere. Okay, this point is very much clear. Can you see that? This is a bacterium, this is a virus. This virus is called bacteriophage. अभी बैक्टीरियोफेज क्या है? जो कि बैक्टीरिया को क्या करेगा? खा डालेगा. सर खा डालेगा मीन्स कैसे करेगा? देखो, वायरस जो बने होते हैं क्या होता है? मोस्टली आरएनए होता है. तो जब ये आरएनए इंजेक्ट होगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की मशीनरी गड़बड़ हो जाएगी और बैक्टीरिया क्या बनाएगा? मोस्टली वायरस बनाएगा. तो हो गया ना वहां पे प्रॉब्लम. तो जब the virus who eat the bacteria, that's called bacteriophage. Okay, so these are the nucleus. What is nucleus? The animal cell we're going to talk about. The animal cell. Okay, तो ये समझा सबको? They are double stranded circular DNA. So the Monera का जो है वो double stranded circular DNA. So we know that DNA is this double helical structure in animals. But we are studying what? A circular DNA. So it will be circular and this will be strand like this. Okay, they are not well developed, right? They are not well developed. They are prokaryotics. They are prokaryotics. तो उनका जो डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा? Not well developed, circular रहेगा. So they membrane bound cell organelle absent. क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, वो एब्सेंट रहते हैं. दे हैव अ रिजिड सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. फॉर व्हाट? प्रोटेक्शन. वेरी गुड. एंड राइबोसोम्स का नंबर कितना है? 70s. एस फॉर स्वेटबर्ग यूनी. 70s विल बी देयर. मे बी मोटाइल. अगर वो मोटाइल रहेंगे तो उनके पास क्या रहेगा? अगर ये सेल है तो ये क्या रहेगा? फ्लैजेला. डोंट टॉक द सेल. टेल मत बोलना उसको, क्या बोलना? फ्लैजेला बोलना. देन न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक, डेड एंड डीके मैटर, पैरासाइटिक, डिपेंड्स ऑन द होस्ट, और समटाइम्स ऑटोट्रोपिक. So these are the things. Now, can you see the diagram over here? This is a very very important. Can you see the capsule? I was talking about this. Can you see the capsule? The outer layer is called capsule. ये क्या है? कैप्सूल. अरे गंदा बन गया. चलो कोई नहीं, हम यूज करते हैं येलो कलर. कहाँ गया येलो कलर? ठीक है, अभी चूज करेंगे येलो कलर. चलो, मिल गया हमें येलो कलर. ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा. न्यूक्लियर क्या है? डीएनए. वायरस के पास आरएनए होता है, इनके पास क्या? बैक्टीरिया ना, डीएनए रहेगा. दे हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनसाइड व्हाट? देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड कैप्सूल रहेगा प्रोटेक्शन के लिए. एंड दे आर हैविंग द फ्लैजेलम फॉर व्हाट? लोकोमोशन. इससे क्या करेंगे? लोकोमोशन करेंगे. दे हैव अ सेल वॉल. पाइलस. पाइलस को और क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेक्स पिलाई. व्हाई इट्स कॉल्ड सेक्स पिलाई? बिकॉज इसमें से क्या करेंगे? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे. सेक्स पिलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर. याद रखना है. राइबोसोम्स का नंबर क्या रहेगा यहाँ पे? 70s. ओके, चलो तो हमने ये कर दिया. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया.
अगर शेप देखो, शेप किसके ऊपर है, शेप के ऊपर डिपेंड। अगर ये सर्क्यूलर शेप में रहेंगे, कैसे रहेंगे, इफ दे आर ऑन अ सर्क्यूलर शेप, कैन यू सी दैट फर्स्ट वन, दैट इज योर कोकाई। क्या है ये, आपके कोकाई है, सर्क्यूलर शेप। अगर बैसिलस है तो रॉड शेप रहेंगे, कैसे रहेंगे, दे विल बी लाइक अ रॉड शेप। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, रॉड की तरह रहेंगे। ओके, दैट्स फॉर बैसिलस। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, लैक्टो bacillus. Very good. Okay, they form a spore. Then flagellum, spirilla. Can you see that? The shape is like स्पाइरोगेरा शेप, राइट। लेकिन यहाँ पे स्पाइरोगेरा नहीं बोल सकते ना, मैं ये रिबिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या उनके बहुत सारे फ्लैजेलम है फॉर मोशन। एंड विब्रियो, एग्जांपल इज विब्रियो कॉलेरा, कॉमा लाइक, दे आर व्हाट, दे आर कॉमा लाइक। तो शेप क्या है, कोकाई, बैसिलस, स्पिरिला एंड विब्रियो। हमने क्या पढ़ा, ये मोनेरा के शेप्स पढ़े। ठीक है, नाउ वी मूविंग टू दी रिप्रोडक्शन, how this kingdom Monera do the reproduction. So here we gonna study about the reproduction. Sure. So they can go for asexual, they can go for sexual. तो अगर हम asexual की बात करें, only one parent is involved. So क्या फॉर्म करेंगे, बाइनरी फिजन। अगर बाइनरी फिजन के वो, बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, in case of amoeba example is binary fission, one cell will be divided to give rise to two daughter nuclei, है ना, two डॉटर सेल बनेंगे। वन से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। पहले क्या होगा, कैरियोजेनेसिस। कैरियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर डिवाइड होगा। देन होगा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। सो टू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स आर फॉर्म। देन वी हैव अ स्पोरुलेशन। व्हाट इज अ स्पोर, spore is unfavorable condition में the bacteria will be producing the spore. Okay, the spores are independent, they will develop into the independent organism. There are two types of spore. अगर spore inside होगा तो उसको बोलेंगे endospore, अगर spore outside the cell होगा तो उसको बोलेंगे exospore. That's called sporulation. सेक्सुअल है तो दे विल बी फ्रॉम कॉन्जुगेशन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन, अभी यहाँ पे मेल फीमेल तो नहीं रहेगा, इतने तो डेवलप नहीं है ये लोग, राइट। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के सेल, दिस इज सेल नंबर वन एंड दिस इज सेल नंबर टू, दे विल कॉन्टैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, दे विल बी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए उनको, देखो मैंने सेक्स पिलाई के बारे में बात किया था, राइट। सो दे विल ट्रांसफर, सो बैक्टीरियम ट्रांसफर इट्स जेनेटिक material to the another bacterium through the direct contact with the sex pili with the help of sex pili। ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी, तो रिप्रोडक्शन तो हमने कर दिया। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। देखो ये अब हम बात कर रहे हैं, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था आपको मैंने, कि कुछ बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में रहेंगे, कुछ बैक्टीरिया कहेंगे थ्रू बैक्टीरिया रहेंगे। तो अभी सिर्फ नाम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आर्चियो बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड हार्श बैक्टीरिया। हार्श, व्हाट डू मीन बाय हार्श, आर्चियोबैक्टीरिया। हार्श का मतलब क्या होता है, एकदम हार्श कंडीशन में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, हार्श कंडीशन सर्वाइवल, सर्वाइवल। ठीक है, तो वी हैव अ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब क्या है, सॉल्ट कंडीशन, सॉल्टी कंडीशन में काम करेंगे, हेलोफाइल्स। वी हैव अ थर्मोहाइसोफाइल, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा और लो पीएच होगा तभी भी ये क्या करेंगे, काम करेंगे। मिथेनोजेंस मतलब मीथेन कन्वर्टिंग, ये क्या है, मिथेनोजेंस का मतलब क्या है, मीथेन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फॉर देयर एनर्जी पर्पस। देन यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, थ्रू बैक्टीरिया। यस, हैशटैग थ्रू बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट मैं ये बता रहा हूँ क्या एग्जांपल है, ब्रू ग्रीन एल्गे, बीजीए। Okay, then we have a heterotrophic bacteria. We're going to study that. Then we have actomycin and mycoplasma. So let's study that in detail. So kingdom Monera, the first is Archibacteria or Archaebacteria. What is Archaebacteria? They are most primitive group. भले ये primitive है, ट्रस्ट मत करना, बिकॉज ये हार्श कंडीशन बैक्टीरिया क्या है, एक्सट्रीम हैबिटेंट्स में ये सरवाइव कर रहे हैं। their cell wall is made up of pseudopeptidoglycans or pseudomurine, that's why they can survive in a very harsh condition, pseudomurine। first is halophiles, first कौन सा है, say hello, halophiles, right, they are found in an extreme saline environment, exactly correct, salt condition, saline environment, salty condition, salt बहुत ज्यादा होगा, सेल तो काम ही नहीं करेंगे, बट क्या है उनके पास, सूडोम्यूरिन है। व्हाट दे हैव अ सूडोम्यूरिन।
They have been observed in the Great Salt Lake, USA. Halobacterium. कौन से बैक्टीरियम? Halobacterium. Then we have a second, thermoacidophiles. They are found in environments having the high temperature and low pH. Acidic condition होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में कौन है? सल्फोलोबस. Sulfolobus. Then we have methanogens. They are found in the gut of the ruminants. है ना? डंग से बाहर आ जाएंगे, तो काउडंग को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए मिथानोजेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन फ्रॉम द डंग. रुमिनेंट्स के कहाँ होंगे? गट में पाए जाएंगे. मिथानो बैक्टीरियम. सो दिस इज द आर्की बैक्टीरिया. Salty condition, halophiles. Thermoacidophiles, low pH but high temperature. Sulfolobus. Methanogens, methane bacteria as per the name. क्लियर है? जाए आगे, बढ़े आगे. चलो अभी देखो इंपॉर्टेंट, यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हमने क्या बोला था? दे आर थ्रू बैक्टीरिया, क्योंकि वो हेलोफाइल्स नहीं है, हीरो नहीं है, नॉर्मल है. ठीक है, तो थ्रू बैक्टीरिया. दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रू बैक्टीरिया. अरे यहाँ तो लिखा था मैंने, फिर से लिख लिया, तो कोई नहीं. थ्रू बैक्टीरिया. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिनोग्लाइकन. उनका क्या बना? सूडोम्यूरिन से बना था. आर्की बैक्टीरिया का. यू बैक्टीरिया का किसका बना? पेप्टिडोग्लाइकन से बना है. वेरी गुड. दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया, तो हम पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट. केमो भी है. देन देखो फर्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, देन वी लर्न द केमोसिंथेटिक, देन वी लर्न द हेटेरो, देन वी लर्न फोर्थ वाला एक्टिनो, एंड द लास्ट माइकोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे. तो पहले फोकस करते हैं साइनोबैक्टीरिया. इट्स आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गे. शॉर्ट फॉर्म BGA. वेरी गुड. सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इनके पास क्या है? ब्लू ग्रीन है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट है. कौन है भाई? क्लोरोफिल है. और उसके बाद भी कौन से है? ए पिगमेंट और बी पिगमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी. मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, और पिगमेंट है. ए पिगमेंट कौन सा उनके पास? फाइकोसाइनिन, दैट्स वाई ब्लू कलर. और फाइको एरिथ्रिन, दैट्स वाई रेड कलर. तो ये कौन सा है? ब्लू कलरेशन देगा. और ये कौन सा कलर देगा? रेड कलर. याद रखो ये चीज, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, फाइको एरिथ्रिन रेड कलर देगा. They are show gliding and oscillatory movements and are covered by the gelatinous sheath. क्या है? जिलेटिनस शीट है, तो कैसे स्लाइडिंग हो जाएगा ना, एकदम स्लिपरी रहेगा. सो एग्जांपल इज एनाबेना. ओके, देन नॉस्टॉक. बोथ आर हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट मतलब एक सेल अलग है. चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. अगर ये नॉर्मल फिलामेंटस सेल, ठीक है, ये वाला जो सेल है इसको बोलेंगे हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट क्या काम करेगा? नाइट्रोजन कन्वर्टिंग में काम करेगा. दे विल कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्रेट्स. ठीक है, ओके. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया. कौन से? स्पिरुलिना यूनिसेलुलर है, माइक्रोसिस्टिस कॉलोनियल है, नोस्टॉक फिलामेंटस. चलो हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात किया. क्या है? क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉप्स रहेंगे, जिलेटिनस शीट रहेंगी, हेटेरोसिस्ट रहेंगे. बस दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया. कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को. नाउ किंगडम मोनेरा का थ्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे. सेकेंड इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. केमोसिंथेटिक मतलब देखो इनके पास क्या है ना, ये हार्श कंडीशन वाले नहीं है. इसमें इनके पास क्या है? प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? आजू बाजू क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है. तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे? जो भी केमिकल अवेलेबल रहेगा उससे वो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज द नाइट्राइट्स एंड अमोनिया. देखो ये हार्मफुल है. नाइट्राइट्स प्लांट्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है, राइट? बिकॉज मोस्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है रिमूव करना पड़ता है. बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो आजू बाजू एक्यूमुलेट हो गया. तो उसके लिए क्या? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स से यूज करेंगे यही सब्सटेंस को क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए. स्मार्ट है ना? यस. एंड हम बात करेंगे अभी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. दिस इज केमो. द थर्ड इज हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक में क्या है? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. ये नीट का एक आपका पॉइंट रहेगा. Who is most abundant in nature? Heterotrophic bacteria. Okay, example बहुत normal है. Curd formation, lactobacillus है ना, lactobacillus. So bacillus rod shape है ना, lactobacillus. Then nitrogen fixation, production of antibiotics. Some are pathogenic. What is pathogen? Disease causing. So cause disease in the plants, animals and humans like cholera. We know that. Typhoid. We know that, right? So these are the heterobacteria that is abundantly found in our nature. Then as we move forward, we have a actinomycin. This is the fourth one. Actinomycins. Mycelial bacteria that helps decompose the organic material. चीटीन होता है. क्या होता है? चीटीन. जो चीटीन मटेरियल होता है
उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। जैसे डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, इट इज माइसीलियल बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द एंटीबायोटिक्स। देखो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं। कॉमनली फाउंड इन अ सॉइल एंड एक्वाटिक फ्रेश वाटर, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। देखो मोस्टली एंटीबायोटिक्स अब जब भी पढ़ो, व्हाट इज एंटीबायोटिक, हाँ बताओ एंटीबायोटिक क्या है, क्या है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या, दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होगा, दोस्त होगा। तो हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया है, तो अगर कोई टॉक्सिन हमने ऐड किया, मतलब क्या होगा समझो, चलो एक बता ही देता हूँ। अगर एक पेटी डिश है, यहाँ पे एक कॉलोनी है ई कोलाई की फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे है चलो लेट स्ट्रेप्टोकोकस की है फॉर एग्जाम्पल, चलो स्ट्रेप्टोकोकस की। तो जब ई कोलाई कुछ उसके बाउंड्री में अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस आ रहा है, तो कुछ टॉक्सिन रिलीज करेगा। वो टॉक्सिन से क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होगा, इरेडिकेट हो जाएगा। तो ये जो टॉक्सिन है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, हमारे लिए वरदान है, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। समझा ये चीज, ओके। देन वी हैव अ माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is what? Fifth one. Mycoplasma is called a joker. जोकर ऑफ द किंगडम मोनेरा। क्यों जोकर बोलेंगे ना, इनके पास सेल वॉल है, एक तो एकदम टाइनी है। दे अपीयर लाइक पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, लैक द सेल वॉल एंड नॉन मोटाइल है। सेल वॉल भी नहीं है, नॉन मोटाइल है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दे एग्जिबिट द प्लूरोमॉर्फिज्म। व्हाट इज प्लूरोमॉर्फिज्म, दे कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, दैट इज वेरी पॉइंट। प्लूरोमॉर्फिज्म, एक तो सेल वॉल नहीं है, क्या करेंगे ये, क्या करेंगे, प्लूरोमॉर्फिज्म शो करेंगे। व्हाट इज अ प्लूरोमॉर्फिज्म, कैन एनीबॉडी टेल मी, इट्स एग्जिबिट अ प्लूरोमॉर्फिज्म, मतलब क्या करेंगे, ये शेप चेंज करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जोकर्स, राइट। एंड दे आर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमने कर दिया है कंप्लीट, किसका रिवीजन कर दिया हमने, कंप्लीट मोनेरे का रिवीजन कर लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट वेरी वेल। सो हियर वी कंप्लीट द किंगडम मोनेरा। इसके आगे क्या होगा, प्रोटिस्टा। So for that, you need to watch the part 2. So I hope you understood this Kingdom Monera. We have done almost all the NCERT points we have done. Okay, my बच्चास, चलो उसको रिवाइज करो, अच्छे से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके अलावा क्या है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करना। क्यों, प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके कंसेप्ट और क्लियर और आपको अच्छे से मेमोरी हो जाएगी, राइट। चलो, सो वी हैव कवर दिस मच पॉइंट। सो थैंक यू बच्चा लोग, चलो बाय बाय।